immediately made applicable. Now, considering that an understanding regarding those amendments is required and how to implement them in your books of accounts and in your records, it is important that we have a one-on-one discussion regarding them. So this meeting has been kept. Our lead partner, Indirect Taxes, Yash Dadda, will be delivering on this, and we'll be happy to take your queries throughout the session. You can post them on the chat box, and at the end of the session, we can have a one-on-one Q&A session. Thank you for joining. Handing over to Yash. Thank you so much, Shuchi. Good morning to all of you. I hope I am audible and there is no disturbance, because when Shuchi was speaking, I could hear some disturbance. So I hope there is no disturbance. In case there is any disturbance, you can write in the chat box so that I can take care of it. Okay. आज वाला जो सेशन है ये हमने लास्ट वीक भी प्लान किया था. इनफैक्ट वी हैड प्लान्ड ऑन 1st of October 2022. Then we got a feedback from some of the participants who are basically supposed to participate, and they said because it was just a day after the last date of filing the tax audit reports, though incidentally it got extended till 7th of October. So they said, why not keep it at some other time so that maximum participants can join. And that's why we had to postpone the session, and that's what we have kept it today. जो आज का सेशन है ये उन सारे चेंजेस के रिस्पेक्ट में है जो चेंजेस जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल है. एंड इसमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बजट के अंदर ऑलरेडी दे वर बेसिकली इनैक्टेड एंड मेड पार्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022, but the date of enactment of those provisions were postponed. And because all of us understand GST के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का इंटरफेरेंस है, that is why जब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो प्रोविजंस हैं अपने अपने स्पेसिफिक स्टेट लेजिस्लेचर में when till the time they were not passed वो इनैक्ट नहीं हो सकते थे. Now 1st October is the official date. Already 7 days have gone there since all these provisions of budget 2022 in respect of GST are applicable. Apart from that, कुछ changes हैं जो rules के अंदर हैं, और उसके साथ में कुछ exemptions हैं जो गवर्नमेंट ने silently withdraw कर लिए. In fact, उसको अगर सही तरीके से पुट करें तो गवर्नमेंट ने उन exemptions को extend नहीं करा जो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर extend कर रही थी. तो उन्हीं सब चीजों के ऊपर we will try and have a conversation. The purpose is वो सभी लोग जो या तो इससे impacted हैं या फिर वो सभी लोग जिनके सप्लायर इसमें impacted है और इंसिडेंटली आपके ऊपर उसका impact आता है. We understand either you are already aware about them. The purpose will be कि उसका impact आपकी day to day जो compliances हैं उसके ऊपर कैसे पड़ता है हम वो देख सके, प्लस क्या चीजें हैं जो हमें going forward करने की जरूरत है in terms of compliance management, plus in terms of हम जो practices अभी तक करते आ रहे थे उन practices में क्या change करना पड़ेगा. First and foremost, I think the most important thing, which I'm sure all of you are aware of, that e-invoicing has been made applicable to all those entities now who had an aggregate turnover of up to 10 or more than 10 crore rupees in any of the preceding financial year, starting from 17-18 financial year up till 21-22. तो पिछले 5 सालों में 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 इनमें से किसी भी सालों में एग्रीगेट टर्नओवर की जो जीएसटी की परिभाषा है उसमें से अगर किसी भी एंटिटी का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो उनको 1 अक्टूबर 2022 से B2B सप्लाईज के ऊपर ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत है. मैं ऐसा समझता हूं कि हम में से जितने लोग सुन रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग के अंदर कवर्ड थे. अगर नहीं भी कवर्ड थे और अब आप इस कारण से इस दायरे के अंदर आते हैं, फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका रिसिपिएंट क्रेडिट तभी ले पाएगा अगर आप उसके ऊपर बिलिंग कर रहे हैं और आपका जो इनवॉइस है इट हैज टू बी ई इनवॉइस, इट शुड हैव एन IRN और उसके ऊपर एक रीडेबल QR कोड होना चाहिए. अगर आप रेसिपिएंट हैं और आप किसी ऐसे सप्लायर से परचेजेस कर रहे हैं चाहे वो गुड्स या सर्विसेज की हैं जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का है,
यू हैव टू इंश्योर कि वो आपको 1 अक्टूबर के बाद जो इनवॉइस दे अपना, इट हैज टू बी एन ई इनवॉइस, इट शुड हैव एन IRN. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अभी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे ऑलरेडी डिपार्टमेंट का ऑडिट हो चुका है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे ऑडिट होने वाला है, और आने वाले समय में जब डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा तो ये एक चीज है जो अपेरेंटली उनके सामने होगी, जहाँ पे वो आपका इनवॉइस जब आपसे मांगेंगे कि आपने किस इनवॉइस के ऊपर क्रेडिट लिया है, और अगर सप्लायर की इनवॉइस के ऊपर अगर IRN कोड या QR कोड, IRN नंबर या QR कोड अगर नहीं होगा, then the officer will say that you are not entitled to take the input tax credit. So it becomes very important कि हम अकाउंट्स के जो बाहर वाले लोग हैं, अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस के जो बाहर वाले लोग हैं, वो सभी लोग जो आपके ऑफिसेस के अंदर प्रोक्योरमेंट देखते हैं, परचेजेस देखते हैं, वो इन चीजों को लेके सैनिटाइज्ड हो कि जब वो इनवॉइस ले रहे हैं किसी सप्लायर से along with goods and services, then that invoice needs to have an IRN number, और जो QR कोड है वो रीडेबल QR कोड होना चाहिए. So these two things are going to be very important. Okay. अब अगर आप आज का सिनेरियो देखें, so कई whenever आपने हमारा कभी सेशन अटेंड करा हो, तो हम एक ये स्लाइड है जो जनरली जब भी हम ITC या इनपुट टैक्स क्रेडिट या IT enabled environment की बात करते हैं, so we generally put this slide. इस स्लाइड के अंदर बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू ऑलवेज से, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप प्लीज अपने माइक्रोफोन्स म्यूट रख सके, सो दैट या थैंक यू सो मच. या सो जनरली व्हाट हैपेंस इज कि हम जब भी ये स्लाइड की बात करते हैं, तो अभी अक्टूबर से पहले तक हम हमेशा कहते थे कि जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम था, जो गवर्नमेंट 1 जुलाई 2017 से लाने की बात कर रही थी, वो सिस्टम अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. उसमें से कुछ चीजें एप्लीकेबल है, कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं है. बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट गवर्नमेंट ने अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, GSTN को लेके और इनवॉइस मैचिंग को लेके. एंड नाउ इफ यू लुक एट इट, यू विल रियलाइज कि अब जो एक, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स और GST पोर्टल की बात करेंगे, then in that case now in a majority cases government thinks कि उन्होंने अपना लूप पूरा कर लिया है. जब हम लूप पूरा करने की बात करते हैं, तो लूप का मतलब ये है कि अगर आप ये कंपनी है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, which is you, तो आपका खुद का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम ERP कहते हैं, और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो आप इनवॉइस जनरेट करते हैं वो ई इनवॉइस पोर्टल के थ्रू होता हुआ GST पोर्टल पे जाता है, और वो GST पोर्टल वाला इनवॉइस की फिर मैचिंग होती है दूसरी कंपनी से जो आपका कस्टमर है, और उसकी 3 पॉसिबिलिटी या 3 संभावनाएं हैं. और ये तीनों संभावनाओं में से हम कहते थे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर सप्लायर ने नहीं दिखाया तो क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे. तो अभी रिसेंट में जो GSTR 3B के अंदर चेंजेस हुए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वंस, वो चेंजेस को ध्यान रखते हुए नाउ वी कैन से कि अगर इनवॉइस आपका प्रॉपर था तो आपके कस्टमर को क्रेडिट मिल रहा है, अगर वो सावचेत है और समय पे क्रेडिट ले रहा है. अगर आप इनवॉइस डाल चुके हैं पोर्टल पे और आपका कस्टमर जो है वो सावचेत नहीं है, तो सरकार ने उनके लिए समय सीमा 30 नवंबर कर दी है कि वो 30 नवंबर तक क्रेडिट ले सकते हैं. और जो तीसरा एस्पेक्ट जो था, जो बड़ा मिसिंग एस्पेक्ट था, वो ये था कि मेरे पास इनवॉइस है पर पोर्टल के ऊपर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या क्रेडिट ले सकता हूँ. और उसके हमेशा 2 तरीके के जवाब थे. लीगल जवाब ये था कि जब तक GST पोर्टल तैयार नहीं है या जब तक कानून में इसको लेके कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक आप क्रेडिट ले सकते हैं. नाउ वी कैन से कि फ्रॉम जनवरी 2022 वो इनवॉइस को GST पोर्टल पे दिखना मैंडेटरी था, और अब अक्टूबर 2022 से इनवॉइस को सिर्फ पोर्टल पे दिखना मैंडेटरी नहीं है, इनवॉइस को एक्सेप्टेबल कैटेगरी में दिखना मैंडेटरी है पोर्टल के ऊपर. और ये एक बड़ा चेंज है जो एक तरीके से चेंज आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ड्राइव करेगा फ्रॉम अक्टूबर 2022. दैट इज सेक्शन 16, वो सेक्शन जिसके तहत हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनफैक्ट कुछ कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट ने डाल रखी है. जब शुरुआत हुई थी तो इसके अंदर 4 कंडीशंस थी, उसके बाद 5 कंडीशंस हुई जनवरी 2022 से, और अब अक्टूबर 2022 से इसके अंदर एक 6ठी कंडीशन ऐड हो गई है, दैट इज कंडीशन BA. तो 16(2)BA करके कंडीशन ऐड हुई है, जिसका सिंपल भाषा में अर्थ ये है,
पहला तो एक AA ऐड हुआ था जनवरी 2022 से, जो ये कहता था कि अब अगर मैं आपका सप्लायर हूं और आप मेरे इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने को इच्छुक हैं, देन इन दैट केस मेरा इनवॉइस मैंने GSTR 1 में सही तरीके से डाला हो और आपको आपके GST पोर्टल के ऊपर वो दिख रहा हो, ये एक मैंडेटरी कंडीशन। अब अक्टूबर 2022 से एक इसमें एक और एडिशनल कंडीशन जो ऐड हुई है वो ये है कि इनवॉइस सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है, इनवॉइस का एक्सेप्टेड कैटेगरी में दिखना जरूरी है आपकी GSTR 2B के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B, तो हम मैचिंग करते हैं GSTR 2B के साथ में 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में। जो हम मैचिंग करते हैं इज इनफैक्ट हमको 2B जो दिखता है पोर्टल पे वो 13 तारीख को दिखता है। तो इफेक्टिवली हम 7 दिन के दौरान जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में डाला है, विच वी हैव पंच्ड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको जब हम मैच करते हैं GSTR 2B की इनपुट टैक्स क्रेडिट से, देन इन दैट केस अगर 2B में इनवॉइस दिख रहा है तो देन अभी तक कंडीशन नहीं थी कि आप इनपुट ले सकते हैं। अब उसके अंदर बदलाव है। अब बदलाव ये है कि आपको सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है, वो ऐसी कैटेगरी में नहीं दिखना चाहिए जहां पे क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड हो। अब वो क्या केसेस हैं, तो इसी सेक्शन 16(2)(BA के साथ में एक और सेक्शन 38 है जिसके अंदर परिवर्तन है जो 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल है, जहां अब ये है कि आपका जो सप्लायर जब वो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना जब GSTR 1 डाल रहा है तो वो GST में कंप्लायंट कितना है उसके हिसाब से आपकी GSTR 2B में ही दिखेगा कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके इनवॉइस पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो क्या कैटेगरीज है जिसपे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं? इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप ऑलरेडी आज किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रखा था। अब उस रिस्ट्रिक्शन को सरकार ने एक तरीके से कानूनन एक मैंडेट दिया है, एक कानूनी चोला पहनाया है और उसको फॉलो करना आप मैंडेटरी है। वो क्या है, अगर आपके सप्लायर ने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो सरकार अब एक रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि उसके रजिस्ट्रेशन लेने के इतने दिनों के अंदर आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। वो कितने दिन होंगे क्या होंगे उसका भी रूल नहीं आया। जिस दिन रूल आएगा, तो मान लीजिए मैंने आज एक इनवॉइस बनाया और मैंने कल रजिस्ट्रेशन लिया है, तो हो सकता है सरकार मुझे बोले कि 30 दिन तक मेरे इनवॉइस के ऊपर मेरा कस्टमर क्रेडिट नहीं ले सकता। ये चीज वेरीफाई करने के लिए कि मैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं हूं, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ ए सप्लायर जो कुछ इनवॉइसेस रेस करेगा और इनवॉइस रेस करने के बाद गायब हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू हैव दैट पीरियड कि जब तक मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो, जब तक गवर्नमेंट इज नॉट श्योर दैट आई एम अ जेन्युइन सप्लायर, तब तक गवर्नमेंट मेरे कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि यश के इनवॉइस का क्रेडिट मत लीजिए। तो वो आपकी अब GSTR 2B में अगर कोई नया सप्लायर होगा और गवर्नमेंट जो भी रिस्ट्रिक्शन डालती है, जो अभी नहीं है रूल्स में, पर जब भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन डालती है तो आपके 2B के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में या नॉट अवेलेबल कैटेगरी के अंदर दिख जाएगा। सेकेंड ये है कि मान लीजिए मैं एक ऐसा सप्लायर हूं जिसने GSTR 1 तो दाखिल कर दिया और मैंने बहुत समय से सरकार को टैक्स सही तरीके से पे नहीं करा या मेरा टैक्स का डिफॉल्ट चल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, देन इन दैट केस मेरा इनवॉइस आपकी 2B में तो दिखेगा, बट बिकॉज मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कराया इसलिए मेरा इनवॉइस आपको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में दिखेगा या नॉट अवेलेबल कैटेगरी में दिखेगा। तीसरा, मेरी GSTR 1 और 3B के अंदर मिसमैच है और हो सकता है वो पुराने कुछ महीनों का मिसमैच चला आ रहा है। तो ये महीने की जो मैं GSTR 1 और 3B भर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई मिसमैच नहीं हो, ये एग्जैक्ट मैच करती हुई 1 और 3B हो, पर मेरे पुराने महीनों की 1 और 3B में मिसमैच है, तो इस कारण से मेरा इनवॉइस आपको रिस्ट्रिक्टेड या नॉट अवेलेबल कैटेगरी में दिखेगा। तीसरा, चौथा, मैंने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है मेरे रिटर्न में एज अ सप्लायर, मैंने GSTR 2B से मैचिंग नहीं करी या गलत तरीके से मैचिंग करी, या मान लीजिए मेरी नॉट अवेलेबल कैटेगरी की इनवॉइसेस का भी क्रेडिट मैंने 3B में ले लिया, तो जब मैंने आपको इनवॉइस दिया GSTR 1 में, तो इन दैट केस मेरा इनवॉइस आपको नॉट अवेलेबल कैटेगरी में दिख सकता है। या फिर अगर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे 1% टैक्स गवर्नमेंट को कैश में पे करने की जरूरत है, जिसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी रूल है जो पिछले 2 सालों से एप्लीकेबल है, वो रूल की मैंने पालना नहीं करी और मैंने फिर भी गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही टैक्स पे कर दिया, तो भी मेरे इनवॉइस में आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। या फिर गवर्नमेंट ने कोई और क्लास ऑफ सप्लायर स्पेसिफाई करी रूल्स के थ्रू, और वो अगर मैं क्लास ऑफ सप्लायर बिलोंग करता हूं तो आप मेरी इनवॉइस पे क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ये एक स्टेप आगे है
गवर्नमेंट क्यों इतना डिले करा, या गवर्नमेंट अब क्यों कॉन्फिडेंट है कि वो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं? बिकॉज जीएसटीएन की तरफ से एक क्लियर संदेश है सरकार को कि अब हमारा जीएसटी पोर्टल जो है वो सक्षम है, और सक्षम होने के साथ साथ नाउ माय जीएसटी पोर्टल हैज नेसेसरी कैपेबिलिटीज कि वो इन सब चीजों को देख सके, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपाइल कर सके, और कंपाइल करके वो डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल करा सके। सो गवर्नमेंट एजेंडा इज वेरी क्लियर। अगर आपका सप्लायर किसी ना किसी तरीके से टैक्स की चोरी कर रहा है, या फिर आपका सप्लायर सस्पिशन है उसके ऊपर कि वो किसी तरीके से टैक्स चोरी में इन्वॉल्व है, या ऐसे किसी ट्रांजैक्शन का वो पार्ट है पीछे से आता हुआ जहां पर सरकार को टैक्स का नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से एज ए कस्टमर आपके ऊपर ओनस डाल रही है कि आप अपने सप्लायर को पुश करें कि वो अपनी टैक्स कंप्लायंस दुरुस्त करे, सही करे, नहीं तो आप उसके इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। और एक इनडायरेक्ट तरीके से आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप अपने सप्लायर को बोलें कि वो अगर टैक्स कंप्लायंस प्रॉपर नहीं करेगा तो उसके इनवॉइस का उसको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जीएसटी तक के एक्सटेंट का। एंड दैट इज व्हाई नाउ दिस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ जीएसटीआर 2B का टोटल मैच ना करें जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, तो टोटल मैच करने के साथ में उसका कैटेगराइजेशन देखें, कौन आपके सप्लायर हैं विच आर गुड सप्लायर्स, कौन आपके सप्लायर हैं विच आर बैड सप्लायर्स। अगर इसी के संदर्भ में बात करें तो 3-4 सवाल है जो जरूर उठ सकते हैं। पहली चीज कि अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लीजिए रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ गई, और अगर सप्लायर ने बाद में अपना टैक्स जो भी डिफॉल्ट था उसको सही कर लिया, तो क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे जाके लिया जा सकता है? अगर कानून देखें तो जवाब है बिल्कुल हाँ, लिया जा सकता है। हमें जीएसटी पोर्टल किस तरीके से बिहेव करेगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब हम अगले महीने और उसके अगले महीने का रिटर्न दाखिल करेंगे। बट हाँ, अगर वो इसमें जो भी डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट की वो कंप्लायंस पूरी करके अगर अपना टैक्स ड्यू सरकार को जमा करा देता है या मिसमैचेस दूर कर देता है, डेफिनेटली इन दैट केस यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट। ये 2A 2B 2C का कोई नया डॉक्यूमेंट होगा, तो एज ऑफ नाउ द अंडरस्टैंडिंग इज जो आपके पास जीएसटीआर 2B है वो 2B जो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर ये बाइफिकेशन आपके पास में अवेलेबल होगा, वेदर यू कैन क्लेम क्रेडिट और वेदर यू कांट क्लेम क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनवॉइस। This brings us to the next point, and I think for all these people who have been doing the compliances in respect of input tax credit, उनके लिए ये टाइमलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब से जीएसटी आया है तब से लेके हम बार बार ये बात करते हैं कि आईटीसी के प्रोविजंस में काफी बदलाव है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैव हैपेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर अब हम बात करें तो 4 अलग अलग विंडोज हैं और हम फाइनली अब उस चौथी विंडो के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर अब लगता है दैट लॉ गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से, गलत हो सही हो जो भी हो, बट उसको सेटल करने की कोशिश करी है। दैट इज अब आपका सप्लायर 2B में इनवॉइस दिखा रहा है और वो अवेलेबल कैटेगरी में है तो ही आप क्रेडिट ले सकते हैं। ये अक्टूबर 2022 से है। जनवरी 22 से सितंबर 22 के बीच में इनवॉइस 2B में दिखना सिर्फ जरूरी था। अक्टूबर 19 से लेके दिसंबर 2021 तक इनवॉइस 2A में दिखना था, वो भी क्यूमुलेटिव चेक करना था, और उसमें भी अगर गैप था तो आप 20% एक्स्ट्रा या फिर 10% एक्स्ट्रा या 5% एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं। और अक्टूबर 2019 से पहले ऐसी कोई मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आपके पास सिर्फ इनवॉइस अवेलेबल था सप्लायर का तो आप उसके बेसिस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। ये 4 विंडो को जब आप साथ में देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि हमारे पास जो पुराने पीरियड्स के कुछ नोटिसेस होंगे आपके पास में, जहां पे सरकार 17, 18, 19 के पीरियड में आपको 2A 3B मिसमैच के लिए फोर्स कर रही है, या मान लीजिए आपको बोल रही है कि टैक्स का पेमेंट करिए और आपने बोनाफाइड बिलीव में सप्लायर को ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है। उन सब केसेस में आज का जो लॉ स्टैंड करता है, अगर हम देखें परिप्रेक्ष्य में, तो पुराने सालों में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में तकलीफ नहीं है। डिपेंड करता है आप you're standing in respect of in which window, आप कौन सी विंडो की तरफ खड़े हैं, out of these 4 you're standing in what particular timeline। इसी 16(2) के साथ में एक और कंडीशन है, that is also very interesting। So कई बार आपको ये नोटिस मिला है कि आपके सप्लायर का इनवॉइस जो है वो जीएसटीआर 1 में तो दिख रहा है, बट सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो एज अ बिजनेसमैन एक नया सवाल उठता है कि अगर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस दिख रहा है, दैट मींस सप्लायर वुड हैव पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट।
अभी मैं कैसे ये चेक करूं सप्लायर हैज पेड टैक्स और नॉट पेड टैक्स? और आपने अगर हमसे या किसी और से एडवाइस लिया होगा तो हमने जरूर कहा होगा कि नहीं, एज अ बिजनेसमैन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है देखना कि सप्लायर ने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। गवर्नमेंट ने उस चीज को थोड़ा आगे जाके समझा और अब उन्होंने एक सेक्शन 41 है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया है। एज अ बिजनेसमैन हो सकता है आपको कभी सेक्शन 41 के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी हो, बट जो आपके रिस्पेक्ट में जो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वो ये है, अभी तक जो हमने कंडीशंस देखी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, जो हम 6 कंडीशंस की बात कर रहे थे, आप उसी का एक एक्सटेंशन है जो मान सकते हैं, जहां पे सेक्शन 41 है जिसको दुरुस्त किया गया है। एंड व्हेन आई से दुरुस्त, दैट मींस सेक्शन 41 वाज ऑलरेडी इन प्लेस, जो 30 सितंबर 2022 तक ये कहता था कि हम जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं अपनी जीएसटी रिटर्न्स में, वो प्रोविजनल बेसिस के ऊपर है। और उसी का फिर एक क्वेश्चन है जो एंसिलरी सवाल उठना चाहिए कि अगर मैंने आज तक जितना भी क्रेडिट लिया है वो प्रोविजनल क्रेडिट है, तो फाइनल क्रेडिट कब होगा? एक जवाब पॉसिबली ये हो सकता था कि जिस दिन मेरा असेसमेंट होगा उस दिन वो क्रेडिट फाइनल होगा। पर इंटरेस्टिंगली जीएसटी के अंदर वैट जैसे रेगुलर असेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जब असेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्रेडिट फाइनल कब होना था? तो टेक्निकली जो कानून बना हुआ था वो जीएसटीआर 1, 2, 3 जब जिस तरीके से फाइल होते उसके हिसाब से वो प्रोविजनल को फाइनल होना था। बिकॉज जीएसटीआर 2 और 3 अब कभी आने नहीं वाले हैं, तो इस सेक्शन को अमेंड करने की जरूरत है। अब इस सेक्शन में ये डाल दिया गया कि आप जो भी अपनी जीएसटी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, चाहे आप मैच करा के लें चाहे आप बिना मैच करा के लें, चाहे आप उसको जीएसटीआर 2B से कम लें, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के लिए, नॉट अवेलेबल कैटेगरी के लिए, आप जो भी क्रेडिट लेंगे वो हम ये माना जाएगा कि आपने अपना सेल्फ असेसमेंट करा, आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करा, कानून पढ़ा और कानून पढ़ के यू हैव टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ आफ्टर दैट इफ दैट हैपेंस और आपके सप्लायर ने अगर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं करा, तो आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो आपकी रिटर्न में वो आपसे वसूला जाएगा अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। और अगर सप्लायर ने आगे जाके वो टैक्स का पेमेंट कर दिया, तब आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपनी रिटर्न में वापस ले सकते हैं। तो अब अगर इस सेक्शन 41 को देखें तो लगता है कि ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेक्शन 16 में कहीं पर है कि सप्लायर को टैक्स पे करने की जरूरत है, तो सेक्शन 41 में वापस लिखने की क्या जरूरत थी? तो इसको अगर हम लिंक करें एक और प्रोविजन के साथ में जो अमेंडमेंट हुआ है, और मैं इन सब चीजों को आसानी से एक बार वापस समराइज करूंगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक प्रोविजन है जो ऑलरेडी पिछले साल से एप्लीकेबल है, और वो ये है कि मान लीजिए मेरी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच है, और अगर वो मिसमैच है तो सरकार के पास अभी राइट है कि वो उस मुझसे टैक्स की डायरेक्ट वसूली कर सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए हुए, कि मानते हुए कि मैंने जो जीएसटीआर 1 में टैक्स दिखाया है वो टैक्स में सरकार को चुकाना चाहता था, अगर मेरे जीएसटीआर 3B के अंदर टैक्स कम है तो। ये हम सब जानते हैं कि जीएसटीआर 1 हमारा सेल का डिटेल है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है, जबकि हम जो सरकार को टैक्स जमा कराते हैं वो जीएसटीआर 3B के थ्रू जमा कराते हैं। बिकॉज एक सेक्शन 75 में सरकार ने अपने पास पावर ली कि वो सप्लायर से डायरेक्ट टैक्स की वसूली कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलिए, मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं, मैंने आपको एक इनवॉइस दिया जिसको मैंने मेरी जीएसटीआर 1 में दिखाया, और फिर उसके बाद मैंने मेरा जीएसटीआर 3B दाखिल नहीं करा। अब जब आपके पास 2B में दिखा तो आपको इनवॉइस प्रॉपर दिखा, क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने कोई नॉन कंप्लायंस करी है, तो सिस्टम ये अभी मेरा नॉन कंप्लायंस पकड़ नहीं सकता। बट बिकॉज मेरी 1 और 3B में मिसमैच है, तो सेक्शन 75 के तहत सरकार मुझसे आके डायरेक्ट रिकवरी कर सकती है। मान लीजिए मुझसे सरकार को रिकवरी करने में 2 महीना, 3 महीना, साल भर जो भी समय लगता है, तो आप सेक्शन 41 अब ये कहता है कि अगर आपने मेरे इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, और मान लीजिए वो इनवॉइस आपको 2B में सही कैटेगरी में दिख भी रहा था, पर सब्सिक्वेंटली ये पता चलता है कि यश ने सरकार को टैक्स नहीं चुकाया है, तो सरकार सेक्शन 41 के तहत आपको ये बोल सकती है यश की इनवॉइस का आप इनपुट रिवर्स करिए। बट अगर सरकार ने मान लीजिए मुझसे 3 महीने बाद टैक्स की वसूली कर ली, और आप सरकार को ये सिद्ध कर पाते हैं, यू आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट इट टू द गवर्नमेंट दैट यश हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट, then in that case you can reclaim the input tax credit. In all these cases, what does this mean? 2-3 things which comes out of this. One is
आपके पास, हम सब के पास ईयर एंड के ऊपर मिसमैचेस होते हैं, वेयर वी हैव इनवॉइसेस बट दोज इनवॉइसेस आर प्रोबेबली नॉट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A और 2. ओके, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन इन दैट केस? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोविजन का? यहाँ पर आंसर है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम हर साल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, which we also tell all of you that this practice can be followed. That practice is you claim the credit in the return even if it is not appearing in your GSTR 2B. This is applicable only for the last return. जैसे मान लीजिए अभी आप जो अक्टूबर का रिटर्न फाइल करेंगे, जिसमें आप 21-22 फाइनेंशियल ईयर के सारे जितने भी चेंजेस हैं उनको डालते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए जितने भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, टेक ऑल दैट क्रेडिट जो आपकी जीएसटीआर 2B में नहीं दिख रहा और उसको हाथों हाथ रिवर्स कर दीजिए, and then push the supplier that I should have that invoice available somewhere in my GSTR 2B at some point of time. कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, दैट इज सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सप्लायर वांट्स टू क्लेम पेमेंट फ्रॉम मी. अगर उसको मुझसे पैसे की जरूरत है अपने इनवॉइस के अगेंस्ट में, देन ही हैज टू इंश्योर दैट इट अपीयर्स इन माय जीएसटीआर 2B. लेट्स से इन दैट जेस्ट कि उसको आपसे पैसा लेना है, वो किसी तरीके से उसको जीएसटीआर 2B में दिखा देता है बट किसी कारणवश टैक्स का पेमेंट नहीं करता. In that case, again, if he doesn't make the payment of tax, subsequently, if he makes the payment of tax, let's say after 6 months, 1 year, 3 months, whatever is the case, Section 41 allows you to take the input tax credit. एक और सवाल जो उठता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज के साथ वसूली होगी, तो अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और इस्तेमाल नहीं किया तो क्या वसूली हो सकती है? तो उसका जवाब अब सेटल्ड है कि आपसे ब्याज की वसूली नहीं हो सकती जब तक आप उस गलत क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर लें, क्योंकि ब्याज की प्रोविजंस में ऑलरेडी एक अमेंडमेंट है जो हालांकि आया था इसी बजट के अंदर, पर वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, विच इज रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. जब तक हम गलत क्रेडिट को इस्तेमाल नहीं कर लेते हमारा टैक्स चुकाने के लिए, तब तक गवर्नमेंट विल नॉट टेक इंटरेस्ट फ्रॉम, सो दैट गवर्नमेंट इन दैट केस विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस रिगार्ड. To summarize what I am trying to say, to sum up basically what I am trying to say, from a businessman point of view, from a finance team point of view, from an accounts team point of view, now going forward, how are you going to claim the input tax credit? So this is how the table looks like. ये एक process है, कोई भी business process है जो going forward कोई भी input tax credit लेने के लिए ये सारे steps है जो mandatory steps follow करने की जरूरत है. ऊपर वाली 4 चीजें आपको अपनी किताबों में करनी है, अगली 4 चीजें आपको जीएसटी पोर्टल पे करनी है, और थर्ड वाला वो है जो आपको पोर्टल पे और किताबों में करने के बाद यू हैव टू इंश्योर दैट यू डू दिस वन मोर एक्सरसाइज टू क्लेम द क्रेडिट. व्हाट इज दैट? रेज अ परचेज ऑर्डर और अ कॉन्ट्रैक्ट. कानून नहीं कहता है बट ये आपको हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर जरूरत पड़ेगी. देन यू शुड हैव एन ई इनवॉइस, अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है सप्लायर के ऊपर तो. उसके बाद गुड्स और सर्विसेज रिसीव करके रिकॉर्ड दैट समवेयर इन योर स्टॉक रिकॉर्ड, मेक एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो ये रेगुलर प्रोसेस है, ये जीएसटी होता नहीं होता डजंट मैटर, ये चारों चीजें आप करते हुए आ रहे थे आज तक. इसमें से एक चीज है जो पहली कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो रिसीट की, दूसरा क्रेडिट आपकी 2B में दिखना चाहिए, तीसरा 2B में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं दिखना चाहिए, चौथा सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया हुआ होना चाहिए, पांचवा आपने खुद ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया हुआ होना चाहिए. Once you do all of these things, this becomes your valid input tax credit, and you realize ये 5 जो चीजें हैं इनमें से 4 चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी पोर्टल पे करने की है. 4 of these things have to be done on the GST portal. In fact, there are 6 things, but I have merged 2 things together. तो ये 4 चीजें हैं जो जीएसटी पोर्टल पे करने की जरूरत है. So it goes without saying that we should have a proper digital strategy. If you do not have a digital strategy, clear digital strategy कि हमें करने कैसे वाले हैं, और अगर हम अभी भी एक्सेल शीट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, या फिर अगर हम अभी भी ऐसा है कि हम पोर्टल पे 2B का फिगर देखेंगे और अगर वो मेरे ज्यादा है मेरे इनवॉइसेस की जो क्रेडिट है उससे, और ऑन दैट बेसिस आई विल क्लेम द क्रेडिट, मे बी आप कुछ रिटर्न्स तो फाइल कर पाए, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द नोटिसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज this is for sure that GST portal has a very strong artificial intelligence, and maybe उतना इन्वेस्टमेंट हमें हमारे सिस्टम में करने की जरूरत नहीं है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करने के लिए कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम या हमारे ERP से जो डेटा जीएसटी पोर्टल के ऊपर फ्लो कर रहा है, देयर हैज टू बी ऑटोमेशन इन दैट रिगार्ड. इट शुड नॉट बी मैनुअल एक्सरसाइज, बिकॉज अगर ऑटोमेशन है तो डेटा ट्रेल रहेगा,
और अगर डेटा ट्रेल रहेगा तो आपके लिए आसान होगा वो रिट्रीवल। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट क्या टू बी में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, क्या टू बी के अंदर अवेलेबल कैटेगरी में है, कब रिस्ट्रिक्टेड से अवेलेबल कैटेगरी में जाएगा, कहां मुझे फॉलो अप करना है, कहां मुझे फॉलो अप नहीं करना है। One more thing which is a next step, and I am assuming अगर आप में से कुछ लोग which I can see are also business owners who are here, not only from the finance team, but in fact if you're from the finance team also, या फिर आप वो है who are executing contracts with your supplier. Now it is very important कि अभी तक जब आप किसी सप्लायर को चूज करते थे, because GST का क्वांटम is average 15% of the total invoice value. अगर आप किसी के साथ साल भर में लगभग 1 CR का बिजनेस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट जीएसटी इन्वॉल्व, अगर मैं सारी रेट्स का एक मीन रेट भी निकालूं, इट विल बी अराउंड 13% to 16%. लेट्स टेक एवरेज 15%. तो हम 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। अभी तक आप जो देखते थे बिजनेस में, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज व्हाट इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, कि वो सप्लायर गुड्स और सर्विसेज टाइमली डिलीवर करता है या नहीं करता है, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, वो टेक्नोलॉजी कैसी इस्तेमाल करता है गुड्स और सर्विस देने के लिए, क्रेडिट पीरियड देगा या नहीं देगा, और रॉ मटेरियल वो जो इस्तेमाल करने वाला है क्या वो जेन्युइन सप्लायर से वो खुद लेता है या नहीं लेता है। तो हम उसका ड्यू डिलिजेंस करते थे फ्रॉम द प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। Maybe now if you are concerned about that 15% of the total transaction, you have to also need to have a revision in the contractual strategy from a GST point of view. That is also look at कि वो GSTR वन टाइमली फाइल करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो क्या मिसमैचेस के साथ करता है या बिना मिसमैच के साथ करता है, उसकी रिटर्न फाइल करने की टेक्नोलॉजी कैसी है, और क्या वो टैक्स पेमेंट के अंदर डिले करता है, आपको क्रेडिट पीरियड देता है नहीं देता है, दैट इज मे बी अ सेकेंडरी एस्पेक्ट, वो गवर्नमेंट को टैक्स टाइमली देता है या नहीं देता है, और वो जो इनवर्ट सप्लाईज ले रहा है क्या उसके सप्लायर टैक्स कंप्लायंट है या नहीं। दिस इज व्हेन यू डू योर केवाईसी ऑफ योर सप्लायर, it has to be essential checkpoints when you do KYC in respect of the supplier, when you enter into a contract with the supplier, when you place a PO, ये सब चीजें आपको PO के अंदर factor in करनी पड़ेगी whenever you're negotiating for a price, because tomorrow he might give you a good discount, but if he is not compliant in GST compliances, वो आपका discount compensate हो जाएगा जो tax का जो non compliance है वो जो करने वाला है। There is next one more change and it is a very important change. In fact, ये सब का compliance आप अभी तक करते आ रहे थे, इस compliance के अंदर एक काफी बड़ा change है which is applicable from 1st of October 2022. What is the change? So up till now law said, and law is still the same. Law ये कहता है कि अगर मैं supplier हूं तो ये सारी compliance करने के बाद as a customer अगर आपको मेरे बिल पे credit लेना है, you have to ensure कि you are making payment to me within 180 days from the date of issuance of invoice. तो मैंने जब आपको invoice raise करा है उसके 180 दिन के अंदर you are making payment to me. अगर वो 180 दिन में पेमेंट नहीं करते थे तो ITC रिवर्सल की बात थी। उसके रिस्पेक्ट में एक रूल था, रूल 37, उस रूल 37 को रिवैम्प कर दिया गया है। द प्रोविजन इज सेम, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो था, कानून वही है, रूल के अंदर चेंज है। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं जो रूल के अंदर चेंज है वो चेंज क्या है, पहले रूल ये कहता था कि अगर मान लीजिए आपने मेरे बिल का मुझे प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया है, लेट्स से यू हैव मेड 30% पेमेंट ऑफ माय इनवॉइस विद इन 180 डेज और 70% इनवॉइस मेरा आउटस्टैंडिंग है जो आपने पेमेंट नहीं किया है विद इन 180 डेज, तब आपको जो जीएसटी रिवर्स करना है वो सिर्फ 70% का रिवर्स करना है। That is to the extent of amount of the invoice which has not been paid. Now the amended rule applicable from 1st of October 2022 says, the rule says that whatever be the situation, you have to ensure that you make the payment of the complete invoice within 180 days. If you do not make the payment of complete invoice within 180 days, then in that case you will be required to basically रिवर्स दी होल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अगर आपने मान लीजिए 90% इनवॉइस का भी पेमेंट अगर कर दिया और अगर 10% छोड़ दिया, तो जिस तरीके से रूल लिखा हुआ है, रूल ये कहता है कि आपको जीएसटी तो एक बार पूरा रिवर्स करने की जरूरत है। नाउ दिस इज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज पहली चीज, सेक्शन कैसा लिखा हुआ था, सेक्शन हमेशा से ऐसा ही लिखा हुआ था, सेक्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं है, बट
रूल क्योंकि प्रपोर्शनेट की बात करता था, अब रूल के अंदर से वो प्रपोर्शन हटा दिया गया है, अब वो पूरे जीएसटी रिवर्सल की बात करता है. That means if you're not making payment even of the part invoice within 180 days, you're technically required to reverse the credit. Second change, which is on a technical front, which is understood very easily by us, maybe not very relevant to you, but it is very useful. 30 सितंबर तक रूल ये कहता था कि आपको रिवर्सल जीएसटीआर 2 में दिखाने की जरूरत है, और हम सब जानते हैं जीएसटीआर 2 जुलाई 17 के बाद कभी आया नहीं. अब सरकार ने इस रूल को अमेंड करके बोला है कि अब रिवर्सल आपको जीएसटीआर 3B में दिखाने की जरूरत है. हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि हम ऑलरेडी जीएसटीआर 3B में दिखा रहे थे, इसमें नई बात क्या है. सो फॉर ऑल दोज हु आर डूइंग द कंप्लायंस इन 3B, दैट्स अ गुड थिंग. For all those who are not doing the compliance because आप GSTR 2 का इंतजार कर रहे थे, now that option is gone. अगर अब आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आपको GSTR 3B में रिवर्सल दिखाना पड़ेगा. तो अभी तक जितना भी लोगों का पुराना लिटिगेशन चल रहा है कि 2 में दिखाएं, 3B में दिखाएं नहीं दिखाएं, एटलीस्ट वो अक्टूबर 2022 से वो लिटिगेशन खत्म हो गया. प्लस इसके साथ बिकॉज अमाउंट ऑल्सो बिकम्स क्वांटिफाइड, द होल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड. So that's very important. Non-payment to your supplier, even the partial invoice, you have to reverse the complete GST. As in when you make the complete payment of the invoice, जिस दिन आप invoice का पूरा payment करेंगे, then only you'll be able to take the complete ITC again. So this is going to be very important. एक सवाल है जो जरूर आपके मन में उठना चाहिए कि भाई जो अभी तक हमारी आउटस्टैंडिंग है सारी, all the payments which we have not made till date, is it applicable for that also? या जो रिवर्सल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस पे तो एप्लीकेबल नहीं है, और गोइंग फॉरवर्ड जो नए 180 डेज की जो कंडीशन आएगी उस पे एप्लीकेबल होगा. डिफरेंशिएटिंग व्यूज पॉसिबल है. अगर आप लीगली पूछेंगे तो लीगली बिकॉज इट इज अ न्यू हार्शर कंडीशन, ये आपका एक राइट है जिसको सरकार रिस्ट्रिक्ट कर रही है. सो इट हैज टू बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. तो अब जितने भी 180 डेज की बियॉन्ड जो आउटस्टैंडिंग होंगे, it should be applicable for new outstanding applicable from 1st of October 2022. There would be another view, और ये चीज बिल्कुल I can say categorically, department will always say it's going to be for all which are not be partially or wholly as on 1st of October 2022. तो अगर अक्टूबर 22 में आपने किसी इनवॉइस का पार्शियल पेमेंट भी कर रखा है पर पार्शियल नहीं करा, और आपने अगर अभी तक प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करा था, तो आपको कंप्लीट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत है. बोथ व्यूज आर पॉसिबल. मे बी यू कैन टेक योर कॉल व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड मे बी इफ द अमाउंट्स आर सब्सटैंशियल इट कैन बी डिस्कस्ड ऑन वन बेसिस इन एन ऑफलाइन सब्सिक्वेंटली. कुछ छोटे चेंजेस हैं जो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस के तौर पे है, just for the purpose of understanding that where government is heading to. जैसे GSTR 1 के रिस्पेक्ट में ये है that if you have not filed GSTR 1 of previous periods, now you cannot file GSTR 1 of subsequent period. I think this is not of much relevance because any which way none of us do that. हाँ, what is important is next, that is GSTR 3B के रिस्पेक्ट में अगर आपने प्रीवियस पीरियड का GSTR 3B या GSTR 1 दोनों में से कोई भी अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आप अगला GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते. आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड कि ये पोर्टल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है ये ऑलरेडी कुछ समय पहले आ गया था. कानून की बैकिंग की जरूरत है, अब कानून की बैकिंग भी आ गई है. तो आपका सप्लायर ऐसे नहीं कर सकता कि वो सिर्फ GSTR 1 फाइल करके छोड़ दे, क्रेडिट आपकी 2B में दिख जाए और GSTR 3B एक साथ फाइल करे. ही कांट डू दैट. Whatever is showing in GSTR 1 उसको उसी के साथ GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगले महीने का GSTR 1 नहीं फाइल कर सकता. तो अगर वापस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, जो सप्लायर आपका रेगुलर सप्लायर है उसको रेगुलर जीएसटी कंप्लायंस करना भी जरूरी है. अगर वो रेगुलर जीएसटी कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो आपको माल तो रेगुलरली सप्लाई कर दे पर क्रेडिट आपको रेगुलरली पास ऑन वो नहीं कर पाएगा. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. We have some SEZ units here, and there is a good news for all those SEZ units. What is the provision? So up till now there was a lack of clarity. क्या SEZ unit खुद अपने आप में कोई रिफंड फाइल कर सकती है अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं SEZ से?
डिपार्टमेंट का ये व्यू था कि नहीं, वो रिफंड फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज जो आप SEZ को जो लोग सप्लाई करते हैं वही LUT में सप्लाई करते हैं, तो या तो वो IGST लगा के खुद सप्लायर रिफंड ले लेगा या फिर LUT में सप्लाई करेगा। नाउ लेट्स से किसी ने SEZ को सप्लाई करा, IGST लगाया, SEZ यूनिट ने वो IGST का पेमेंट करा और सप्लायर ने वो IGST का रिफंड नहीं लिया, देन इन दैट केस SEZ यूनिट कैन से कि अगर वो IGST लगा के एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो कर सकती है, जो एनीवेज वो पहले भी कर सकती थी, बट उसको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट वाज अ क्वेश्चन। बट नाउ इन केस दे आर आल्सो मेकिंग एक्सपोर्ट्स अंडर LUT, और अगर उनके पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा है तो उसका वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उन सारी SEZ यूनिट्स को मिलेगा who are precautionary paying tax under reverse charge, जहां पे वो कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोक्यूर करते हैं जिसके वो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करते हैं, तो एक तरीके से वो कॉस्ट एक्यूमुलेट हो रही थी। नाउ देयर इज एन एडिशन टू द एक्सप्लेनेशन इन रूल 54, जहां पे वो कहते हैं कि क्या रेलेवेंट डेट है जिसमें रिफंड फाइल किया जा सकता है, एंड देयर इट सेज दैट दे वुड बी एबल टू फाइल रिफंड इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। One more important change, that is in respect of all those people who file refunds. क्या change है? Not directly going to impact you, but you should be aware about this. So we know whenever you file a refund claim, government processes it, then they give us a refund order RFD 5, RFD 06, और उसके बेसिस पे हमारे पास में पैसा आता है। एक सेक्शन 54 सबसेक्शन 10 है, जहां पर आपका जो रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास में पावर है कि आपके रिफंड को या तो वो विदहेल्ड कर सकते हैं या रिफंड सैंक्शन करके उसमें से पैसा काट सकते हैं। अगर आपकी कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस की कोई डिमांड GST कानून में या पुराने एक्साइज सर्विस टैक्स वैट कानून में आउटस्टैंडिंग है, या फिर अगर आपने रिटर्न नहीं दाखिल करी है, तो उसके रिस्पेक्ट में जितना भी टैक्स होता है वो आपके रिफंड से वसूली कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन था रिफंड काटने का या विदहेल्ड करने का या वसूली करने का, ये अभी तक जो रिफंड का प्रोविजन था ये सिर्फ उन सब के रिफंड्स पे एप्लीकेबल था, वो सब लोग जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड फाइल कर रहे थे या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में रिफंड फाइल कर रहे थे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड इन 3 कैटेगरी के अलावा अगर कोई और कैटेगरी का रिफंड है, कोई एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड है, कोई मेरे कैश लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है उसका रिफंड है, या लेट्स से कोई अपील ऑर्डर से मेरे पास में आउट ऑफ एन अपील आई एम गेटिंग अ फेवरेबल ऑर्डर टू क्लेम अ रिफंड, अगेंस्ट ऑल दोस रिफंड ऑर्डर्स आल्सो नाउ द रिस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल। So earlier restriction was only in respect of inverted duty structure and supplies made a refund against zero rated supplies under LUT. Now other categories of refund के ऊपर भी applicable है, specifically all the contractors which we have here who are working for government, और जहां पे आपका TDS कटता है गवर्नमेंट की तरफ से, GST TDS, या फिर वो सब लोग जो ई-कॉमर्स पे सेल करते हैं जहां पे आपका TCS कलेक्ट करता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर, और वो आपकी कैश लेजर में जो पैसा इकट्ठा हो जाता है। So now if you are claiming that refund, which is the easiest refund, and that's a very easy way to claim back that amount from the government, उसका पैसा आपको तभी मिल पाएगा अगर आपके अगेंस्ट में कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं हो। What does this mean? This means अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है और आप रिफंड फाइल करने जा रहे हैं, दो में से एक एक्शन जरूर लीजिए। अगर अपील फाइल करनी है आपको, you want to contest that demand, file the appeal within 3 months, pay the pre-deposit to the government so that you have a stay on demand and then file a refund claim. Or second, अगर वो नहीं तो ensure that you make the payment of your all outstanding taxes which are there along with interest and penalty whatever is applicable, अगर आपको अपील में नहीं जाना है तो, and then only file the refund application. Otherwise it will become a one more complication, आपका रिफंड सैंक्शन हो जाएगा, पैसा कट जाएगा, फिर उसके अगेंस्ट में अपील में जा रहे होंगे कि मेरा रिफंड का पैसा क्यों कटा हुआ है। सो unnecessary it will be a cash loss. Then next very important, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज भी दिया है। आई एम श्योर वो सब लोग जो कंप्लायंस करते हैं वो वेट कर रहे होंगे कि हम इसके बारे में कब डिस्कस करेंगे, दैट इज डेट एक्सटेंशन। तो अभी तक सितंबर का रिटर्न बड़ा क्रूशियल रिटर्न होता था, सितंबर का GSTR 1 और सितंबर का GSTR 3 भी बड़ा क्रूशियल होता था। एडवाइस हमेशा ये होती थी कि इन रिटर्न्स को डिले ना करें, टाइम से फाइल करें, बिकॉज ये सितंबर के रिटर्न में पिछले फाइनेंशियल ईयर की कोई भी आप एडजस्टमेंट, करेक्शंस, एडिशंस, डिलीशंस
करना चाहते हैं, क्रेडिट नोट दिखाना चाहते हैं, कोई क्रेडिट आपकी लेने से रह गई है वो दिखाना चाहते हैं, तो ये लास्ट मौका है आपके पास में। उसके बाद उस पिछले फाइनेंशियल ईयर का यू विल नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, 5 अलग अलग सेक्शंस के अंदर जाके गवर्नमेंट ने जहां जहां सितंबर की रिटर्न के साथ में ड्यू डेट लिंक्ड थी उसको चेंज करके एड हॉक बेसिस पे 30 नवंबर लिख दिया डेट को। तो पहले इट वाज रिटर्न ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, नाउ इट सेज 30 नवंबर। कौन कौन से सेक्शंस के रिस्पेक्ट में, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं और लेने से रह गए हैं, देन इन दैट केस 30 नवंबर इज द डेट। या कोई क्रेडिट नोट आपने इशू करा था अपनी आउटपुट सप्लाईज के अगेंस्ट में जिसमें आप जीएसटी कम करना चाहते थे, and now you want to do that, you haven't done that already in your GST return, then for that date is again 30th of November। या आप अपनी GSTR 1 में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई एडिशन करना चाहते हैं जो नहीं हुआ है 30th नवंबर, या आप GSTR 3B में कोई करेक्शन करना चाहते हैं 30th of नवंबर, या फिर आपकी TCS रिटर्न के अंदर कोई एरर या ओमिशन है, इन दैट केस डेट इज अगेन 30th of नवंबर। नाउ व्हाट इज दिस 30th of नवंबर, ये अपने आप में एम्बिग्यूटी है। क्या 30th नवंबर मींस नवंबर की रिटर्न या फिर नवंबर तक फाइल करी गई रिटर्न? सो इसके ऊपर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन अ प्रेस रिलीज। In fact, provision was also very clear. It says जो भी आप रिटर्न 30th नवंबर तक फाइल कर रहे हैं उनके अंदर आप ये सारे प्रोविजंस का जो इम्पैक्ट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। That does not mean कि नवंबर की रिटर्न जो आप 28 दिसंबर को फाइल करेंगे वहां तक का आपको समय मिल गया है। आप 30th नवंबर तक जो भी GSTR 1 और 3B फाइल करने वाले हैं और इन सब सेक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं वहीं पर ये एप्लीकेबल है। So that means कौन से मंथ हुए? So month is going to be October 2022 और September 2022। आप सितंबर का जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं, अभी जो बचे हुए रिटर्न है पेंडिंग रिटर्न्स, यू कैन फाइल अप टिल 30th of नवंबर, या फिर आपको अक्टूबर का रिटर्न जो आप 20th नवंबर तक फाइल करने वाले थे, मे बी यू कैन डिले इट फर्दर बाय 10 days बट नॉट बियॉन्ड 30th of नवंबर। गवर्नमेंट इंटरेस्टिंगली इनडायरेक्टली कह रही है अगर आप समय लेना चाहते हैं तो रिटर्न थोड़ा डिले कर दीजिए अपनी GSTR 3B को। आप 20 नवंबर तक फाइल करते थे, 30 नवंबर तक फाइल कर दीजिए, जरूर हम लेट फीस लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी है, तो 10 दिन का जो लेट फीस होगा हम लेट फीस लेंगे, उसके साथ में अगर कोई इंटरेस्ट बनता होगा तो इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपका सप्लायर आपके रिटर्न डिले, आपका कस्टमर अगर आपके रिटर्न डिले करने के कारण कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाया तो आप गवर्नमेंट को आके ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने 30th नवंबर का डेट दिया था। सो फ्रैंकली स्पीकिंग इट इफेक्टिवली मींस if I tell you that we have to be tax compliant also, not only take the benefit, effective date is without any delay 20th of November। that means आपका जो अक्टूबर का रिटर्न है सॉरी आपका जो अक्टूबर का रिटर्न है that is going to be the important return in which you can make all the necessary amendments। credit note के respect में it is very important to note that you can issue the credit note up till 31st of October 2022 and you have to show them in your return of October return which has to be filed before 30th of November। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक कि कोई नवंबर के अंदर हम जाके क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर का, बिकॉज नवंबर में अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करा तो आप नवंबर का रिटर्न नवंबर में फाइल नहीं कर सकते, पोर्टल विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। So all these things practically it means is you have 1 month's extra return which you can delay up till 10 days। That's what government is saying। अगर आप कोई बचा हुआ क्रेडिट लेना चाहते हैं या क्रेडिट नोट डालना चाहते हैं या आप रिटर्न्स के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, for that you have 30th November as the date। It is applicable for all corrections which you are going to do for financial year 21-22 also। Then cancellation of registration, one more change, so may not be applicable for all those people who are listing here because I understand हम लोग जो है who regularly do the compliance probably situation हमारी arise नहीं होगी, but it is important that you tell your supplier about this। आपका सप्लायर जो आपके साथ बिजनेस कर रहा है उसको ये चीज बतानी जरूरी है that गवर्नमेंट ने सेक्शन 29 के अंदर एक अमेंडमेंट करा
और सेक्शन 29 में अमेंडमेंट करके सरकार ने अपने साथ में बोला कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए हम कुछ पहले तो पावर हम हमारे हाथ में चाहते हैं जिस पावर को हम रूल के थ्रू एग्जीक्यूट कर सके। तो उन्होंने बोला वो सब लोग जो GSTR 4 कॉम्पोजिशन रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उन्होंने 3 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करा बेसिकली फॉर 3 मंथ्स देन फ्रॉम द ड्यू डेट, तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। और कॉम्पोजिशन के अलावा वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए हम रूल प्रिस्क्राइब कर देंगे। एंड इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट मेड चेंजेस इन द रूल आल्सो। रूल 21 के अंदर जो कैंसिलेशन को लेकर रूल है उसमें अक्टूबर 2022 से एक अमेंडमेंट है, 2 अमेंडमेंट है रादर। So the amendment says is for all those people who have not filed GSTR 3B for a continuous period of 6 months, 6 महीने तक अपना GSTR 3B continuously फाइल नहीं किया है, या फिर वो सब लोग जिनको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, and who have not furnished return for a continuous period of 2 tax periods, which effectively means 6 months. 2 क्वार्टर का रिटर्न अगर उन्होंने फाइल नहीं किया कंटिन्यूसली, जो QMRP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है उनका रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल कर सकती है। वो लोग जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो 6 महीने तक अगर अपना रिटर्न नहीं फाइल करते रेगुलरली, तो रजिस्ट्रेशन उनका सरकार कैंसिल कर सकती है। एक बात जो हम ऑलरेडी एक जो इसके अंदर 21 के अंदर एक रूल F है जो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, एंड आई थॉट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर टैक्स डिटेल्स के अंदर डिले है, सॉरी टैक्स डिटेल्स के अंदर डिफरेंस है अगर, and if you have a difference that can also be a possible reason to get a registration cancelled. ये already applicable है 21F. That is why 1-3B में difference हमारा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो probably हमारे लिए important है। रिटर्न हम फाइल ना करें ऐसी पॉसिबिलिटी आई कांट सी, बट इफ यू टेल योर सप्लायर कि हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो ई-वे बिल इशू नहीं कर पाएगा एंड ही वोंट बी एबल टू डू द बिजनेस आल्सो, सो दैट्स व्हाई ही हैज टू इंश्योर दैट ही मेक्स अ प्रॉपर कंप्लायंस. Okay, last 2-3 points and then we'll go to the question answers. One very important change which has happened, वो सब लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, आपके रिस्पेक्ट में एक चेंज है, एंड दैट चेंज हैज बीन, गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन था आउटवर्ड फ्रेट के रिस्पेक्ट में. जो भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे थे, ऑल द गुड्स व्हिच वर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, and when they were going from India to outside India, there was an exemption given by the government in respect of services by way of transportation of goods either by an aircraft or through a vessel. In respect में what government had done is that because refunds in GST were delayed, जब से GST start हुआ refunds were delayed, so all the exporter community they said that before GST there was no tax on this outward freight. And now the standard rate of tax on transportation of goods by vessel is 5% and transportation of goods by air freight is 18%. तो 5% और 18% टैक्स है, रिफंड ऑलरेडी डिलेड है. अगर हमारे फ्रेट पोर्शन के ऊपर भी टैक्स लग गया, my cost of export is going to increase and it will become non-competitive because मेरा कैश फ्लो ब्लॉक होता है. गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस एंड दैट्स व्हाई उन्होंने 2 एग्जेम्पशन की एंट्री दी, 19A और 19B, नोटिफिकेशन नंबर 12 में. और ये जो एग्जेम्पशन की एंट्री थी, एग्जेम्पशन एंट्री सेड कि हम हर 6-3 महीने के लिए दे वर एक्सटेंडिंग द एग्जेम्पशन. तो जितने भी गुड्स वेसल के थ्रू इंडिया के बाहर जा रहे थे या जितने भी थ्रू गुड्स एयरक्राफ्ट के थ्रू इंडिया के बाहर जा रहे थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था. जो लास्ट एक्सटेंशन था एग्जेम्पशन का, दैट वाज अप टिल 30th of September 2022, और ये हर 3-3, 6-6 महीने के लिए बढ़ता था. तो शायद आपको कभी ये नोटिस में इसलिए नहीं आया क्योंकि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव थी, जैसे समय खत्म होने वाला होता था उसके 1 महीने पहले इसको फर्दर एक्सटेंड कर देती थी. नाउ दिस टाइम गवर्नमेंट वेंट साइलेंट, देयर वाज नो एक्सटेंशन एंड नाउ दिस एग्जेम्पशन इज गॉन. What this is effectively means that now if your goods are going you're exporting goods from India to outside India, और अगर वो वेसल के थ्रू जा रहे हैं, so now in that case there is going to be a tax of 5%, और अगर वो एयरक्राफ्ट के थ्रू जा रहे हैं it is going to be 18%. नो डाउट आप रिफंड के लिए एलिजिबल है ये दोनों टैक्सेस के ऊपर, पर आपको एक बार ये टैक्स अगर इंडियन शिपिंग लाइन है या CHA है उसको देने की जरूरत है. यहां तक के लिए ओके, बिकॉज नाउ रिफंड प्रोसेस हैज स्मूथन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. रिफंड इतने भी डिफिकल्ट नहीं है जितने पहले थे. मैं ये नहीं कह सकता हिकअप नहीं है, हिकअप से, बट दे आर रिलेटिवली वेरी स्मूथ. But still there is a problem. What is the problem? Maybe this problem
we might not face immediately, but if government is not proactive, it is going to be a unnecessary pain point for all the exporters. What is the issue? So हम सब जानते हैं जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई. Yeah, all of us know that we have a concept of place of supply under GST. What does place of supply means? कि ultimately what is the consumption of the tax? ये टैक्स कहाँ जाके कंज्यूम होगा, कौन से स्टेट को जाके टैक्स मिलेगा. प्लेस ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में प्रोविजन है, तो एक सेक्शन 12 है जो ये कहता है अगर कोई सर्विस का सप्लायर और रिसीवर दोनों इंडिया में है, if they say that the supplier of a service and the receiver of a service, both of them are in India, then in that case if the receiver is registered in GST, अगर receiver GST में registered है तो place of supply वो होगा जो उसका registration है. So that means, for example, let's say I am Yash Dalda taking services of a shipping line which is also in India, or let's say CHA which is who is also in India. Then in that case CHA भी इंडिया में, यश डड्डा भी इंडिया में है, लेट्स से CHA बॉम्बे के अंदर है, यश डड्डा जयपुर के अंदर है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया राजस्थान, सप्लायर हो गया महाराष्ट्र का, और वो IGST लगा देगा. बट अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन डाला गया आज से 2 साल पहले, और एक्सेप्शन ये डाला गया कि अगर वो सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की है और अल्टीमेटली अगर गुड्स का ट्रांसपोर्ट इंडिया के बाहर होना है, द गुड्स आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई विल कम आउटसाइड इंडिया. सो नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लेट्स से आई वेंट टू अ CHO, मैंने CHO को बोला ये मेरी गुड्स है which have to be transported to USA through a ship. He has told me कि this is the amount of shipping line, ये ocean freight का पैसा होगा, ये terminal handling होगा, ये other charges होंगे. He is going to charge tax from me, I am going to pay tax to him. The problem will be place of supply जो transportation service का होगा, that place of supply will not be Rajasthan now. Place of supply will be outside India, because section 12 subsection 8 का proviso ऐसा ही बोलता है कि place of supply shall be destination of goods. Now, destination of goods means place of supply will not be Rajasthan. How does it matter if place of supply is not Rajasthan? उससे क्या फर्क पड़ने वाला? अब आप देखिए GSTR 3B का एक नया फॉर्मेट है जो पिछले महीने गवर्नमेंट लेके आई, और उन्होंने बोला अब इस फॉर्मेट में you have to file the returns. All of us have filed returns in this new format for the, in fact we are filing that for this month, next month and the last month also. इसमें आप रेड मार्क देखिए जहां पे कुछ इनएलिजिबल ITC की डिटेल्स है, एंड इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) and ITC restricted due to POS provision. So there is this one more small line which says ITC restricted due to POS provision, that is place of supply provision. Now what is the ITC which is restricted due to place of supply provisions? Nobody knows, law is not clear. फिर थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट एक एडवाइजरी लेके आई कि ये क्या है, नॉट अवेलेबल कैटेगरी में क्या आएगा. तो नॉट अवेलेबल कैटेगरी में जो GSTR 3B में लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने 3 आंसर दिए. सो वन ऑफ द आंसर वाज, व्हिच इज हाइलाइटेड इन ब्लैक बोल्ड, द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी मार्क्ड एज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग सिनेरियोज. द स्टेट ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सेम, whereas the recipient is located in another state. अभी पढ़ने से जो समझ में आता है वो ये है कि मान लीजिए आपका सप्लायर महाराष्ट्र का, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र, बट अगर रिसिपिएंट बैठा है राजस्थान के अंदर विच इज मी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो अगर ये इतना ही रिस्ट्रिक्टेड है तब तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र भी नहीं है जहां मेरा CHA बैठा है. प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी आउटसाइड इंडिया. But this tax will never flow to Rajasthan. ये टैक्स कभी राजस्थान सरकार को नहीं मिलेगा इस IGST पोर्शन. And tomorrow Rajasthan government may stand up and rise and they may say कि they have basically they have not got the tax of this transportation, और because transportation का टैक्स सरकार को नहीं मिला है इसलिए उसका बेनिफिट नहीं देंगे. ये प्रोविजन में अमेंडमेंट क्यों आया था? कोई बोलेगा कि इस तरीके का अमेंडमेंट सरकार को करने की जरूरत क्या थी? तो उसका आंसर ये है कि सरकार को अमेंडमेंट इसीलिए करना पड़ा क्योंकि वो सरकार एक्सपोर्ट जो था, एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन को टैक्स फ्री करना चाहती थी. वो करना का इंटेंशन था जो सरकार ने अपने मेमोरेंडम में भी लिखा बजट के, बट इसका जो रेमिफिकेशन है वो कुछ और ही है. ये ट्रांजैक्शन आज की डेट में टैक्सेबल है
और इसका टैक्स वो स्टेट की सरकार के पास में नहीं आता प्रोपोर्शनेटली जहां पर रिसिपेंट बैठा है, दिस टैक्स गोज इन अदर टैक्स इन अदर टेरिटरी. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड बिकॉज सारे सीएचएस ने, शिपिंग लाइन ने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है. ये क्रेडिट हमारी 2B में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में होपफुली नहीं दिखना चाहिए. आई अंडरस्टैंड होपफुली, क्योंकि अभी तक जितने भी कोरियर थे उनके भी यही प्रॉब्लम था, बट वो टैक्स नहीं दिख रहा था. Tomorrow department, if this section is not amendment and the clarification doesn't come, department may unnecessarily cause an issue in this particular regard. So this is one issue which I wanted to flag before all of you. Industry की तरफ से representation has to go. As of now, I will advise take credit. ऐसा नहीं करना है कि credit नहीं लेना है, but we have to be cautious that this is one possible issue which may arise if law doesn't change. Last thing, एक already change है जो budget के through हो गया था, बट इसके ऊपर जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनैलिटी नहीं है. तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन कैश लेजर. लेट्स से मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं एंड आई हैव वन मोर रजिस्ट्रेशन आउटसाइड राजस्थान एंड आई हैव अ बैलेंस अवेलेबल इन माय कैश लेजर, और मेरा जो दूसरा रजिस्ट्रेशन है वहां पे कुछ कैश अमाउंट की जरूरत है टू पे जीएसटी बिकॉज मेरा क्रेडिट एग्जॉस्ट हो चुका है वहां. कैन आई ट्रांसफर माय कैश टू अनदर रजिस्ट्रेशन आउटसाइड राजस्थान विद इन सेम पैन? आंसर इज यस. लॉ में उसके लिए प्रोविजन है जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आ गया, दैट बाय फाइलिंग अ फॉर्म आई कैन मेक दिस ट्रांसफर. इसके रिस्पेक्ट में जीएसटी रूल्स के अंदर भी बदलाव आ गया है. द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट इज नॉट स्टार्टेड ऑन द पोर्टल येट. सो ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाता है कि क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज थियोरेटिकली यू कैन, प्रैक्टिकली यू कांट, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे इसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है. तो जब तक फंक्शनैलिटी नहीं होगी तब तक हम इसके रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं कर पाएंगे. So I think these are few changes which are important, which I thought are important for discussion with all of you. There are other changes also which have been made applicable, but they are very procedural changes, very technical changes, may not be directly applicable to you on a day-to-day compliance or from a business decision point of view. But otherwise ये जो सब changes है, इन सब चीजों से एक चीज है जो हम I would like to repeat again, जो हम समझ सकते हैं. Government is moving towards automation, and it is very important that maybe the technology and infrastructure जो सरकार का है वो हमसे बड़ा हो. And I do not have any shame in saying that because their artificial intelligence is better than us. But still we should make an endeavor कि हम जितनी चीजें हैं उसको सिस्टम में ऑटोमेट कर सके या उस तरफ हम आगे कदम बढ़ा सके. बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जब ई इनवॉइसिंग अब 10 करोड़ तक की सप्लायर के ऊपर आ चुकी है और थोड़े टाइम में 5 करोड़ तक की सप्लायर पे आ जाएगी, दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट हॉल्ट जिसके नीचे सरकार नहीं जाएगी. तो गवर्नमेंट कह रही है जब एक 5 करोड़ का सप्लायर एक IRN जनरेट करके मुझे तुरंत बता रहा है कि मैं एक इनवॉइस पे कितना टैक्स सरकार को देने वाला हूँ, तो वो इनवॉइस के रिकॉर्डिंग हैज टू बी ऑटोमेटिक इन द सिस्टम्स. And going forward, we do not want that somebody does a manual matching in this particular regard. So thank you all of you for patient hearing. I can see 2 or 3 questions. मैं 2 और 3 सवाल देख सकता हूँ. उसके बाद as and when you have any question, you may either write in the chat box or you may unmute yourself, and then probably we can have some discussion on those questions, and then we can wind up. So I'll take one question which I can see. One is what about QRMP return filers? Yes, very good question. सवाल ये कि QRMP return filers के लिए टाइम लिमिट क्या है, क्या उनके लिए, बिकॉज वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो अभी वो सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे फिर दिसंबर का रिटर्न फाइल करेंगे, तो उनके लिए 30 नवंबर जो डेट है इट इज इररिलेवेंट डेट. whatever changes they have to make in the return of September only. उनके पास एक्स्ट्रा 1 महीने का ब्रीदर नहीं है, तो वो सितंबर की रिटर्न उनके लिए कानून में कोई बदलाव नहीं है. उनको जो चेंजेस करने हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना है, क्रेडिट नोट का डिटेल्स डालना है, दे हैव टू डू दैट इन द रिटर्न ऑफ सितंबर ओनली. Yes, if there are any other questions, we can take all those questions. Okay, one more question. Yes, so Vishnu ji का एक question है, in case we deduct retention amount from supplier, GST has to be reversed. Okay, so विष्णु जी का जो क्वेश्चन है वो 180 डेज की पेमेंट के रिस्पेक्ट में, कि अगर हम रिटेंशन का जो पैसा है वो काट रहे हैं तो दैट मीन्स हमने पेमेंट नहीं किया है, और वो पेमेंट नहीं किया तो क्या हमें पूरा जीएसटी रिवर्स करने की जरूरत है? तो इसका आंसर ये है कि जो सेक्शन है वो ये कहता है वेरेवर देयर इज अ फेलियर टू मेक द पेमेंट.
नाउ फेलियर हैज टू बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे आपको पेमेंट करने की जरूरत है, मैंने पेमेंट नहीं करा, या किसी कारणवश आपका पैसा मेरी इच्छा से मैंने रोक लिया। जहां पर रिटेंशन है, रिटेंशन का मतलब ये है कि दोनों पार्टी जानते हैं कि जब पेमेंट होगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट रोका जाएगा, एंड इट इज वेल अंडरस्टूड बाय द पार्टीज, सो दैट रिटेंशन इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ फेलियर। और बिकॉज वो फेलियर नहीं है, अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो रिटेंशन का पैसा काट रहे हैं उस पे आपको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो रिटेंशन आपको जब रिलीज करना है, अगर आप उसको तब रिलीज नहीं करते हैं और अपने पास रोक के रखते हैं, देन इन दैट केस आपको वो टाइम के ऊपर जाके आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। बट इफ यू आर डिडक्टिंग रिटेंशन चार्जेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन नो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड। If date increase from September to October, 990 date will extend or not? इसका आंसर मैं नहीं कर सकता सर, बट आई अंडरस्टैंड डेट विल नॉट इंक्रीज। इनफैक्ट जो रिसेंट इनकम टैक्स का जो एक्सपीरियंस है उससे आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज इन एनी मूड। प्लस मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ कि बिकॉज हम जब नवंबर तक सारे करेक्शंस करेंगे तो हमारे पास 1 महीने का ही समय बचेगा। I'm not sure whether government will extend the date. So we have to be prepared for 31st of December only. सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अगर सप्लायर ने अपने को इनवॉइस दिया मान लो अप्रैल में, और अपन ने उस इनवॉइस को चढ़ाया लेटर ऑन मे बी ऑन जुलाई और अगस्त, तो अपन कब इनवॉइस उसकी इनपुट क्लेम करेंगे? जिस महीने में आप अपन ने चढ़ाया, ऑब्वियसली बात है हाँ उस महीने के अंदर अपना वो 2B के अंदर इनपुट आ नहीं रहा होगा, तो 2B का टोटल अपनी बुक्स O3B से कम होगा उस मंथ में, तो क्या ये पॉसिबल बिल्कुल है? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो गवर्नमेंट जब मैचिंग करती है, जनरली दे डू अ मैचिंग ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस, वो क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर मैचिंग करती है, वो मंथ ऑन मंथ मैचिंग नहीं करती। जरूर आपको कुछ नोटिस आए होंगे जहां पे उन्होंने एक स्पेसिफिक मंथ का पीरियड पिक कर लिया होगा, बट दो नोटिस कैन बी आंसर्ड। बट अगर आपकी क्रेडिट पुराने 2B में दिख रही है उसी फाइनेंशियल ईयर के, आप क्रेडिट ले सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर भी है जो रिफंड के कॉन्टेक्स्ट में है, बट आपको आईटीसी में भी मदद करेगा। सर्कुलर नंबर 135 है। सेम केस ये अपन मार्च में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? इनवॉइस मार्च का था और अपन ने अपने बुक्स में अप्रैल में चढ़ाया है, तो बेस बात अपन ने इनपुट अप्रैल में क्लेम करेंगे। एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो। यस गुप्ता जी। हाँ सर। सर ये पूछा था, जो 180 डेज पेमेंट का टर्म्स थी आपकी, उसमें एक क्वेरी, मान लो वेंडर के साथ पेमेंट टर्म्स थी हमारी ये है कि हम 240 डेज में पेमेंट करें कॉन्ट्रेक्चुअली, तो उस केस में भी क्या रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी? कितना बोल रहे सर? 40 डेज? 240 डेज। 240 डेज नहीं। हाँ, सो गुड क्वेश्चन सर। तो जो पहले आंसर दिया था वही है, अगर 240 डेज लिखा हुआ है तो वहां पे फेलियर नहीं है और आईटीसी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं आती है। डिपार्टमेंट जरूर इस चीज के ऊपर लिटिगेट कर सकता है, बट लॉ की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, व्हेन देयर इज अ फेलियर टू मेक द पेमेंट। तो फेलियर कॉन्ट्रैक्चुअली हो सकता है क्योंकि पेमेंट गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं कर रही है, पेमेंट पार्टीज पहले तय कर रही है। और अगर वो पेमेंट अगर 180 डेज में दोनों ने तय करा था उसके अंदर होना है और नहीं होता है तो आईटीसी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअली 240 डेज कर रखा है, देन इन दैट केस आपको लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है रिवर्सल की। जरूर इसके ऊपर सरकार सवाल कर सकती है, बट दैट कैन बी आंसर्ड satisfactorily. Excuse me, sir. दूसरा जो 100% रिवर्सल वाली जो बात कर रहे हैं, मान लो पुराने बिल है मेरे और 31 सितंबर तक मैंने उनका पेमेंट नहीं किया, तो उस पे हाँ जी। एप्लीकेबल होगा? उस पे एप्लीकेबल होगा हाँ, या तो इसके बाद जैसा की? मैंने कहा था, हाँ करेक्ट, मैं समझ गया सर। मैंने डेलिब्रेशन में कहा था लीगली वो एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज एक तरीके का नया रिस्ट्रिक्शन है और कानून की जो इंटरप्रिटेशन है वो होता है कि कोई भी अगर सरकार नया रिस्ट्रिक्शन लेके आ रही है, इट हैज टू बी ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, वो कभी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो जो पुराना एक्शन हो चुका है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। अगेन वो सवाल करेंगे, बट आई डोंट थिंक वी हैव टू रियली वरी इन दैट रिगार्ड। हम जितना भी नया 180 डेज से ज्यादा जो आउटस्टैंडिंग होगा गोइंग फॉरवर्ड 1 अक्टूबर से, उसके ऊपर ये प्रोविजन को अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन। ओके, गुप्ता जी हैज वन मोर क्वेश्चन, मे बी लेट हिम कंप्लीट देन वी कैन गो टू अजीता मैम। जी गुप्ता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मोहन सर,
actually had a question. I think Gupta sir is done with his queries. Okay. Yes, Ajita ma'am. सर ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बात कही गई है वो रिटर्न में होना जरूरी है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ये बात क्लियर हो सकती है सर किसी पेमेंट So, के madam- 240 days? जी So टेक्निकली अगर आप बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है. पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज दे माइट नॉट अग्री टू एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट इट इज रिटन इन नेचर. अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है तो एक अडेंडम के थ्रू इट कैन बी एन एडिशनल थिंग व्हिच कैन बी मेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो सर ये स्टैम्प पेपर पे होना लिखवा जैसे सर कोई पेमेंट है कोई माल का सप्लाई हुआ उसमें कुछ डिस्प्यूट थे ना वो डिस्प्यूट क्लियर हो गए आफ्टर 240 डेज तो उनसे बैक डेट में लेना चाहिए करंट डेट में बैक डेट को लिखवाते हुए से नहीं बैक डेट कुछ नहीं current dated. We are not talking about anything backdated. Current dated. If the parties have agreed today also, that is also absolutely fine. No problem. थैंक यू सर. Okay. There is one question in the chat box. Previously, Tran 1 के through excise का credit claim कर लिया था, पर VAT की credit claim नहीं किया था. Present में VAT assessment up to June 17 final हो गए हैं और उसमें excess balance show हो रहा है VAT order में. उस VAT excess पर क्या Tran 1 में claim कर सकते हैं? अगर yes, then कैसे पहले? Okay, good question. So there is one question which has been asked that if let's say I couldn't claim any credit in respect of VAT, but now out of assessment some additional amount has come. Can I take that in my Tran credit? Because हम सब जानते हैं कि the Tran window has been reopened for 2 months starting from 1st of October till 30th of November. तो अगर in that regard जो ये question है specifically सुनील जी का, the answer is yes, you can go to your Tran, file that in your credit coming through a return. Because though it is coming out of an assessment, but because government has taken a view that ultimately the credit which comes out of the assessment is going to be the credit which was under the earlier law, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. Again, department may only have one point in saying कि आपने इसको अपने रिटर्न में नहीं डाला था because आपकी previous रिटर्न में नहीं था, इसलिए 140 subsection 1 में नहीं आता. But answer to that is even if अगर वो रिटर्न में नहीं था और VAT assessment के अंदर that figure has been quantified, that means earlier law के अंदर ये मेरा right है which government has given to me. And once that right has come out, I can very well take it forward because now I have a Supreme Court judgment. There is alternate approach. In case you don't do that, then you can file a refund application under VAT because now there are a lot of judgment which say कि जो credit को आप आगे carry forward नहीं करके गए पर वो आपका right था उसका आप existing law के अंदर refund claim कर सकते हैं. Okay. Sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. सर इस केस के अंदर अगर मैं ट्रेन 1 के अंदर डालता हूँ सर इसको दोबारा से अभी तो ये रिवीजन के अंदर मेरे को एक्साइज का भी दोबारा से शो करना पड़ेगा या खाली मैं वेट पोर्शन की जो टेबल्स आपको जो चेंज करना है आपको सिर्फ वही फिगर वापस डालना है सर. केवल वही डाल दें सर इसके अंदर. Okay sir, thank you sir. Thank you. Okay, we have two questions in chat box. If supplier files GSTR1 and shows input to us, but supplier does not file GSTR3P, then how to restrict credit as on the file GSTR3P in same month? Good question. So it will come in your next month. वो आपको next month के अंदर credit के अंदर there is a possibility आपकी जो अगर कोई fresh invoice अगर होगा वो restricted category में आ जाए. Number 1. Number 2, अगर मान लीजिए वो आपको कोई subsequent supply नहीं कर रहा है तो उस महीने तो आपके restricted category में नहीं आएगा, आप क्रेडिट ले पाएंगे. बट सेक्शन 41 कानून को ये पावर देगा या ऑफिसर को ये पावर देगा कानून से कि वो 41 के अंदर जाके आपको ये बोले कि आप वो क्रेडिट रिवर्स करिए क्योंकि आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करा है. सो द आंसर इज अगर सब्सिक्वेंट कोई क्रेडिट होगा तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगी नए इनवॉइस की, और अगर नहीं होगा तो अगर डिपार्टमेंट फाइंड आउट करता है तो आपको एक नोटिस दे सकते हैं 41 का हवाला देते हैं. Okay, one more question. If we book invoice of October 22 in January 23, from which date 180 days will start? It will start from the date of invoice, not from the date of booking. तो अगर आपका invoice October 22 का है, आप किसी भी महीने में बुक करिए, 180 days will start from the date of invoice. Okay. So I think we're done with the questions. In case there are any other questions, you can always reach out to our CRM. I'm sure all of you regularly receive messages from our CRM.
And otherwise also you can reach out to us offline. In case you have missed any of the sessions, it's a free knowledge session for all the clients and friends, so that because GST is an ever evolving law, तो हम चाहते हैं कि we should share knowledge amongst each other so that we are more compliant. Thank you so much all of you for your patient time on this Saturday afternoon. In case we have any other things to take care, we'll meet again with another topic. Thank you so much.